Good evening, students. Today we are beginning with fourth unit, that is HRD needs, subsystem and strategies. In this slide you will find all these three topics, and so far your third unit is concerned, it is already, all the video lectures are there on the Moodles on the YouTube, right? I've been asking you to access them, so please access them, right? These will also be posted on the Moodles only, and through them you can access the YouTube. All these links are created on YouTube, as you know. So let us begin with the fourth unit. So first we shall talk about HRD need, then subsystem of HRD in these slides, right? So need for HRD. So in this, why there is a need for HRD? Let's talk about that. So these slides have been designed in order to answer all these things. In the fast moving business world today, organizations are evolving. यानी कि निरंतर business develop हो रहा है, नई नई चीजें निकल रही है. The role of the manager has become more diverse. क्योंकि with the advent of the technology, with the advent of the variety of things in the business scenario in today's time, the manager's role is all the more becoming diverse and more complex in today's time, right? Now radical changes are taking place. Radical मतलब बहुत ज्यादा changes हो रहे हैं. Radical यानी कि important changes are taking place because of economic pressure and the demand for enhancing efficiency and productivity. Ultimately हर company आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है on the basis of being more efficient and more productive. These are the two watchwords. अब सोचने वाली बात है how the organization can be made more effective and productive. Obviously the onus, the responsibility lies on the human resources of the concerned. So अगर human, इसीलिए need for HRD क्यों है? क्योंकि efficient बनाना है, productivity enhance करनी है, और ये तभी possible है जब human resource development is taking place in that organization. So growth of information technology facilitated tasks to be completed within seconds than in days. So हम कह सकते हैं कि आज से 20 साल पहले और आज के जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं वो फास्टर हैं, मोर एफिशिएंट है, मोर एक्यूरेट है बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो टेक्नोलॉजी हैज परमिएटेड इनटू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग. और एचआरडी में भी इसका चूंकि पूरी तरह से यू कैन से इंक्लूजन हो चुका है, because most of the systems or processes which are carried in a business are done through computers or with the help of information technology. So the idea to develop human resources becomes all the more important. So here lies the importance of human resource development. So efficient बनाना है, productive बनाना है, IT टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के इंटरफेस में लेकर चलना है. ये तमाम चीजों के कारण there is a demand to develop the ऑल द मोर देयर इज अ मोर डिमांड. यू कैन से जो आज से 20 साल पहले लोगों को डेवलप करने की डिमांड थी उससे कहीं ज्यादा आज की डिमांड है. टू कीप पेस विद सच एनवायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डेवलप इट्स पीपल एंड अलाउ देम टू ग्रो. जैसा मैंने कहा, लोगों का डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए. इस तरह के कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में हमें निरंतर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नई नई चीजें आ रही हैं, तो नेचुरली लोगों का ग्रोथ होते रहना चाहिए. HRD must therefore be viewed as a total system interacting with other systems of the organization. So HRD को, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को आइसोलेशन में कि खाली एक HRD डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है. वो जिम्मेदारी तो है, बट इट इज इन डूइंग बाय जॉइनिंग विद दी अदर सिस्टम्स, यानी कि अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन. कहने का मतलब है इट इज अ वेरी इंक्लूसिव कंसेप्ट दैट परमिएट्स इनटू वेयर एवर पीपल आर वर्किंग, HRD must be there. This is the idea. The employee capability needs to be sharpened. This is possible through human resource development. Obviously, we need people more efficient, more sharp, more intelligent, more efficient. और इन सब के लिए लोगों का continuous develop होना जरूरी है, जहां पे mainly it is the role of HRD. The need for HRD arises because to create a climate free from monotony and to improve the work life. लोगों को एक धर्रे का काम करते हुए बोरियत ना हो और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंप्रूव किया जा सके, ठीक है, इसलिए एचआरडी की नीड है. देन टू फैसिलिटेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू सरफेस क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय इन. हर इंसान के अंदर क्रिएटिविटी है और ये फुल स्विंग में तभी आता है जब हम उसको मौका दें, अपने पोटेंशियल को वो रियलाइज करके उसको सामने ला सके
तो ये मौका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऐसा कहता है कि वो मौका दिया जाना वो चाहिए, और वो फैसिलिटेट कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ही करता है। टू एनेबल दी मेंबर टू अटेन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्रू सिस्टमैटिकली डेवलपिंग देयर पोटेंशियल। देखिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो स्टेट होता है जहां और कोई नीड की जरूरत नहीं होती, हमें इतना डेवलप करना है लोगों को। बट ये पॉसिबल है क्योंकि अगर हम लोगों की पोटेंशियल्स को निरंतर डेवलप करते रहेंगे, उनकी कैपेबिलिटीज को एनहांस करते रहेंगे, तो एक समय आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब सर्व समावेश, यानी कि हर चीज इंक्लूसिव हो गई है, एंड ही बिकम्स अ कंप्लीट मैन। हाउएवर ये अचीव करना पॉसिबल नहीं होता, बट हम कोशिश कर सकते हैं बाय डेवलपिंग हिम सिस्टमैटिकली, टैपिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्रिएटिव एबिलिटीज ऑफ द पीपल टू यूटिलाइज फॉर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। आज जो बंदे की जो कैपेबिलिटीज है वो हमें पता है, और फ्यूचर की क्रिएटिव एबिलिटी को हम अगर उभार के लाएंगे, वी विल कम इन टू द फोर, अगर बाहर लाएंगे, किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए। सो ना केवल करंट रिक्वायरमेंट तो है ही भाई, जो भी जिसकी जो एबिलिटी है आज की डेट में, प्रेजेंट में, वो तो है ही, बट की फ्यूचर के लिए भी उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना, उसकी एबिलिटी को एनहांस करना है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया जा सके। फैसिलिटेटिंग ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉइज एंड मेकिंग देम अवेयर अबाउट देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोगों की ग्रोथ निरंतर होती रहे और समय समय पे हम उनकी स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेस को हाईलाइट करते रहें, जिससे कि वो उनको वर्क अपॉन कर सके। हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन टू यूटिलाइज ह्यूमन रिसोर्सेज टू देयर मैक्सिमम पोटेंशियल। ऑब्वियसली जब हम लोगों की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे वर्कआउट करेंगे तो हम उनकी मैक्सिमम पोटेंशियल्स को रियलाइज करने में कर पाएंगे। ठीक है। अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर फर्दर डेवलपमेंट बाय दी एम्प्लॉइज देमसेल्फ। तो जब आदमी लगातार डेवलप होता है और हम उसे अपॉर्चुनिटीज फर्दर डेवलपमेंट की देते रहते हैं, तो वो आगे निरंतर बढ़ता रहता है, एक एम्प्लॉय बढ़ता रहता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर नीड ऑफ एचआरडी। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। नाउ कमिंग टू द, ये एक बड़ा टॉपिक है, सब सिस्टम ऑफ एचआरडी। 13 इंपॉर्टेंट सब सिस्टम्स है, लाइक परफॉर्मेंस अप्रेजल। अच्छा, एचआरएम में ये चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, बट जो इस तरह से मैं ट्रीट कर रहा हूं उसको थोड़ा सा डिफरेंटली हम व्यू कर रहे हैं, क्योंकि आवर व्यू पॉइंट इज प्योरली फ्रॉम द एचआर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये सारी चीजें वो हैं जो आप पहले से जानते हैं, बट ये किस तरह से यूज हो रही है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, सो परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, पोटेंशियल अप्रेजल हो गया, करियर प्लानिंग, ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, रिवार्ड, काउंसलिंग, क्वालिटी सर्कल, रोल एनालिसिस एंड अदर्स। सो ये कुछ चीजें हैं जो हमें एक्सप्लोर करनी है। राइट नाउ परफॉर्मेंस अप्रेजल सबसे पहला है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ प्रोसेस ऑफ रेटिंग और इंश्योरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ हिज जॉब। हम ऑलरेडी जानते हैं, ये साल में एक बार या 2 बार हो सकता है, और बहुत सारी चीजें जो कमियां हैं वो हम सामने ला पाते हैं एम्प्लॉयज की, उसके परफॉर्मेंस को अप्रेज करके, और हम उसको वी टेल हिम दैट दीज आर द शॉर्टकमिंग सो दैट ही कैन वर्क अपॉन इट एंड इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस. Now, performance appraisal is the measure of an individual's performance in a systematic way. The performance of employees is measured against the factors such as knowledge of job, quality and quantity of output. उसकी knowledge कितनी है, उसकी quality और quantity of output of work कैसा है, इनिशिएटिव लेता है कि नहीं, आगे बढ़ के काम करता है कि नहीं, सुपरविजन, ऑब्वियसली उसका सुपरविजन, अगर वो सुपरवाइजरी पोजीशन में है, उसका सुपरविजन कैसा है, वो लोगों से काम ले पाता है कि नहीं। देन लीडरशिप क्वालिटीज, ऑफ कोर्स ये सुपरविजन से रिलेटेड है। अगर आप में लीडरशिप क्वालिटीज है तो आप अच्छा सुपरविजन का मतलब खाली सुपरवाइजर से नहीं है, एक मैनेजर भी सुपरवाइज करता है, क्योंकि उसमें लीडरशिप क्वालिटीज है तो वो अच्छा सुपरविजन, लोगों से ज्यादा अच्छा सुपरवाइज, यानी कि लोगों से ज्यादा अच्छा काम ले पाएगा। कोऑपरेशन ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हम दूसरों को कोऑपरेशन भी लेते हैं और दूसरों से कोऑपरेट भी करते हैं। डिपेंडेबिलिटी, आपको काम दिया जाता है, आप समय से उसे पूरा करते हैं कि नहीं, ये आपकी डिपेंडेबिलिटी हो गई। हेल्थ, ऑब्वियसली यू हैव टू बी फिजिकली फिट इन ऑर्डर टू गिव योर बेस्ट शॉट। वर्सेटाइलिटी, यानी कि कभी कुछ दूसरा काम भी दे दिया तो उसके लिए झिझकना नहीं है, बल्कि उसको भी निभाना है। जजमेंट, किसी सिचुएशन को रीड करना और उसके वेरियस जो पहलू हैं उनको समझना, वेरियस डायमेंशंस को समझना, और टू अराइव एट अ डिसीजन, दैट इज योर जजमेंट। तो ये तमाम चीजें वो चीजें हैं जो अप्रेजल में हम देखते हैं एक बंदे में। हालांकि परफॉर्मेंस अप्रेजल अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके का है, हम ये नहीं कह सकते कि वाइस प्रेसिडेंट का परफॉर्मेंस अप्रेजल और एक शॉप फ्लोर लेवल के वर्कर का परफॉर्मेंस अप्रेजल एक होगा। क्यों?
क्योंकि दोनों का वर्क नेचर डिफरेंट है, दोनों की रिक्वायरमेंट है। कहने का मतलब ये जनरल चीजें हैं जो हर लेवल पे लागू हो सकती हैं, बट अलग अलग डायमेंशंस में। जो चीजें एक वाइस प्रेसिडेंट की लागू होती है, हो सकता है वो एक लोअर लेवल वर्कर के लिए ना हो। जो एक लोअर लेवल के वर्कर पे लागू होती है, वो हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए ना लागू हो। बट परफॉर्मेंस अप्रेजल, इट इज द अप्रेजमेंट और असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सन एंड इट इज डन फॉर एवरीबडी, क्योंकि इसके ऊपर प्रमोशन, पे, दूसरी फैसिलिटीज सब डिपेंड करती हैं कि हाउ यू परफॉर्म। अल्टीमेटली दैट इज द क्रक्स ऑफ द थिंग। द पर्पज ऑफ द अप्रेजल इज टू असेस द प्रेजेंट पोजिशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू डिटरमाइन देयर नीड फॉर ट्रेनिंग। हमारा कंसर्न इस एचआरडी कंसेप्ट में यह है कि हम लोगों की क्या जान पाए बच्चों, हम लोगों की प्रेजेंट पोजीशन, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उसको हम नाप पाए इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नीड ऑफ ट्रेनिंग। अगर उसकी एफिशिएंसी में कमी है तो हम उससे ट्रेनिंग नीड से जोड़ सके, यानी कि उस बंदे को क्या कमी है और उसको हम ट्रेनिंग से किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। तो ये जो एस्पेक्ट है ये इंपॉर्टेंट है हमारा एज अ सब सिस्टम ऑफ एचआरडी जो कि हम यूज करते हैं। ठीक है, देन वी हैव द परफॉर्मेंस अप्रेजल कंसिस्ट ऑफ जॉब एनालिसिस। ऑब्वियसली जॉब एनालिसिस दो हिस्से होते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। आप लोग जानते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन इज डिस्क्राइबिंग द जॉब, जो रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज किसी हर जॉब से रिलेटेड उससे जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन वो ह्यूमन एबिलिटी होती है जो कि उस जॉब को निभाने के लिए चाहिए, जैसे क्वालिफिकेशन होगी, स्किल लेवल हो गया, वो जॉब स्पेसिफिकेशन में आ जाती है। तो जॉब एनालिसिस बहुत जरूरी होता है जिसके बेसिस पे हम परफॉर्मेंस अप्रेजल का हिस्सा बनता है वो। ठीक है, स्टैब्लिशिंग द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली हम एक बेंचमार्क देते हैं कि आपको इस लेवल का परफॉर्मेंस देना है आने वाले समय में, और फिर उसको बेंचमार्क मारते हम देखते हैं कि बंदा उसको रीच कर पाया, ही हैज अचीव दैट और नॉट। ठीक है, ये होता है। देन कम्युनिकेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड टू द एम्प्लॉइज, ये भी बताना जरूरी है कि हम क्या बेंचमार्क आपके लिए सेट कर रहे हैं। जैसे एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, उसको अगले 6 महीने का टारगेट हमने मान लो 50 लाख का दे रखा है, तो ये बेंचमार्क उसके लिए ये होगा कि अगर वो उसको अचीव करता है तो हम कहेंगे कि ही हैज मेट विद द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अदरवाइज समथिंग नीड्स टू बी डन मोर, और वहीं ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन होती है कि कुछ और ट्रेनिंग दी, कुछ और कमी है जिसको पूरा किया जा सके। देन मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, हमने बेंचमार्क दे दिया, अब उस बेंचमार्क को वो रीच कर पा रहा है कि नहीं, हमें ये देखना होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में। क्योंकि जब हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस से उसको स्टैंडर्ड को कंपेयर करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वेदर ही हैज मेट दोज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स और नॉट, और ही हैज फॉलन शॉर्ट ऑफ इट। तो अकॉर्डिंगली फिर हम जजमेंट लेते हैं कि क्या उसे ट्रेनिंग देने की जरूरत है, क्या मोटिवेट करने की जरूरत है, ये तमाम चीजें डिसीजन मेकिंग के आ जाते हैं। देन कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड एंड डिस्कस विद द एम्प्लॉय। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया, एक्चुअल परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके, एम्प्लॉय के साथ डिस्कस करके, उसको अगर कमियां हैं तो कमियां बताई जाती हैं, और अगर उसने अचीव कर लिया है तो उसे फर्दर डिस्कस करके फर्दर मोटिवेट किया जाता है। इनिशिएटिव करेक्टिव एक्शन में यही सारी चीजें हैं जो अभी मैंने बताया कि भाई या तो वो किसी डायरेक्शन में जाके उसे ट्रेनिंग की आवश्यकता है अगर कमियां हैं, अगर वो टारगेट्स मीट नहीं कर पा रहा स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में, उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कम हो रही है। ठीक है, और अगर वो मीट कर पा रहा है तो हम उसे फर्दर मोटिवेट करेंगे। सो दीज आर द थिंग्स वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।